Hello, class 6. Welcome to computer class. I'm your teacher Nitish Kumar. Today we read our chapter number 4, formulas and functions in MS Excel. So this is the part 1 video for this chapter, MS Excel. In this class we read how you write simple and complex formula in MS Excel. Now, what is a formula? Formula are equations that perform calculations on values in a worksheet. A formula is always start with equal to sign. A formula is always start with the equal to sign, as you see in a example, equal to 50 plus 5 into 7. Any type of formula we can write in this type of, or we can write any type of formula in MS Excel. Now we see how can we create a basic formula or a simple formula. So this is a chart which I use for creating the results or the, we already know every box in this MS Excel. This is a MS Excel window. Every box in MS Excel is known as cell. Every box have his own ID. हर एक बॉक्स का एक अपना ID है. जैसे इस बॉक्स का जो अभी ग्रीन बॉर्डर से सेलेक्टेड है, इसका ID है H10. ओके. सो और अगर हम इसको एक वर्टिकल वे में ले लें तो इसको हम लोग कहेंगे रॉ. और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल वे में ले लें तो इसको हम लोग कहेंगे column. Okay. So this is a brief description of MS Excel, but today we are here for learning how to use formula and function. So I am start with a simple formula. For example, I am a seller. मैं एक सेलर हूँ और मैं कुछ प्रोडक्ट बेच रहा हूँ किन्हीं को. जैसे मैंने मॉनिटर्स बेचे हैं 15 पीस पर, हर एक का प्राइस है 3500. माउस बेचे हैं, ठीक है. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट what is the total amount and how we calculate it. So we start to write formula. How can we write a simple formula for this one? We start with the equal to. We as we all know, a simple formula or any type of formula start with equal to. So I'm giving the equal to. Now the address of this cell, because we have to know what is the rate. So what is the address of this cell? B2. Now you see, when I write B2, this cell is automatic selected, and then I want to multiply it with this cell, so I am giving the sign of multiplication, and then the name of this cell, what is the name of this cell? C2. Now simply click the enter button from your keyboard. Now he have to जिन्हें मैंने मॉनिटर बेचा है उन्हें मॉनिटर्स के लिए 15 मॉनिटर्स के लिए मुझे ये अमाउंट पे करना होगा. अब मैं दूसरा वाला करके देखता हूँ, फिर से करके दिखाता हूँ. अब फॉर्मूला इज ऑलवेज इक्वल स्टार्ट विथ इक्वल टू. नाउ द सेकंड सेल, दिस सेल का एड्रेस क्या होगा? C3. नो, इट्स B3. अगेन मल्टीप्लाई एंड देन दिस सेल एड्रेस, इस सेल का एड्रेस क्या होगा? C3. नाउ क्लिक ऑन एंटर बटन. ही हैव टू पे 4000 फॉर द माउसेस. And if you don't want to write all the columns, so simply go in this simple small box with the cell. आपको सेल के साथ एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा. वहाँ जाने के बाद देखिए मेरा कर्सर का साइन चेंज हो गया है. मैं नीचे जाता हूँ, थोड़ा मोटा प्लस आता है. वहाँ जाने के बाद एक पतला सा प्लस आता है. When we have this type of cursor sign, then simply hold your left mouse button को दबाए रखना है और उसको नीचे की ओर खींचना है. ओके. नाउ यू सी, बिना कैलकुलेट किए मेरा सारा रिजल्ट आ गया है. अब एक सिंपल सा फॉर्मूला और हम लोग लिखेंगे. फॉर एग्जांपल अब हमको उनका टोटल जोड़ना है कि उन्होंने टोटल कितना उनको देना है, उनको टोटल अमाउंट कितना मुझे देना है जिनके पास से मैं ये डिटेल लाया हूँ. तो हम उनका टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं. टोटल कैलकुलेट करने के लिए फिर से फॉर्मूला लिखना होगा, यानी कि इक्वल टू से स्टार्ट करना है. वी स्टार्ट विथ इक्वल टू, देन दिस सेल एड्रेस. तो इस सेल का एड्रेस क्या है? D2 है ना, प्लस
D3 plus D4 plus D5 plus D6. Okay, now press enter. Now we have the total amount which he have to pay me, 2,44,000. This is the total amount which he have to pay me for this type of products. Now there is a one more problem. If he don't want to pay me right now, then he have to pay me after some time for 1 year, 2 years, whatever he want. So this time we have to calculate one more thing. This is known as compound interest. So compound interest, how can we calculate the compound interest on this amount? For example, हमको कितने सालों के लिए ये दिया जा रहा है, ठीक है, पहले हम लोग को ये ध्यान देना है। तो कितने ईयर्स के लिए दिया जा रहा है, पहले ये हम लोग लिखते हैं, ठीक है, हम लोग ईयर पहले लिखेंगे। तो ईयर कितना हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए इनको दिया जा रहा है ये 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब इस पे कोई रेट भी है कि हमको कितना इंटरेस्ट चाहिए, ये भी तो दिखाना होगा ना। तो इस पे कोई इंटरेस्ट भी है, इसका इंटरेस्ट कुछ भी कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए मैं 4% इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ, तो मैंने 4% दे दिया, ठीक है। अब मैं इस पे इनका कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करूँगा, तो उसके लिए भी हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, बिकॉज वी आर राइटिंग अ सिंपल फार्मूला। एक्चुअली सिंपल फार्मूला भी है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, लेकिन अभी हम लोग सिंपल फार्मूला को सीख रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग नॉर्मल फार्मूला को सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग देखते हैं कैसे हो सकता है। एज यू नो एवरी फार्मूला स्टार्ट विथ इक्वल टू, देन आई एम गिविंग द इक्वल टू। नाउ द अमाउंट, द टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट किस सेल में है, इस सेल में। इस सेल का नाम क्या होगा, D7, मैंने D7 दे दिया। नाउ मल्टीप्लाइड बाय रेट और द ईयर। आप रेट और ईयर दोनों में से किसी को भी पहले ले सकते हैं। तो जैसे मैं ईयर को पहले ले रहा हूँ, मैंने कैलकुलेट कर दिया H7, अगेन आई एम गिविंग द मल्टीप्लाई, देन मैं रेट ले रहा हूँ I7, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज आपको ही पता है इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग को डिवाइडेड बाय 100 करना है। एंड देन सिंपली क्लिक द इंटर। मैंने क्या किया, फिर से एक बार समझ लेते हैं। मैंने पहले जो टोटल अमाउंट था उसका सेल एड्रेस दिया है, मल्टीप्लाइड किया है ईयर के साथ, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किया है रेट के साथ। तो जब भी हम लोग किसी चीज़ को परसेंटेज में दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल ये 4 क्या था, 4 हमारा था 4%, ओके। तो 4 क्या था, 4%। तो इसलिए हम लोगों ने इसको इस तरह से दिखाया था। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का साइन देने से गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपल एक 4 रखेंगे, ठीक है, और परसेंटेज की साइन को हटा दिया जाएगा। हम लोग सिंपल यहाँ पर एक 4 रखेंगे, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव द अमाउंट विच ही हैव टू पे मी, ओके, फॉर इंटरेस्ट। ये हमको कितना पे करेंगे, ये हमको इतना इंटरेस्ट पे करेंगे इसमें। तो इनको अब टोटल अमाउंट क्या पे करना है, 2 साल के बाद। 2 साल के बाद इनको जो भी पे करना है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक टोटल निकालते हैं। टोटल आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स के बाद एक टोटल इनको क्या देना होगा, तो इसमें हम लोग देंगे इक्वल टू, फिर से देना है, बिकॉज वी नो अ सिंपल फॉर्मूला स्टार्ट विद इक्वल टू। इस सेल का एड्रेस D7, अब हम प्लस कर रहे हैं इसमें इसका इंटरेस्ट जो कि है J7 में, ठीक है, और प्रेस इंटर। नाउ दिस इज द टोटल अमाउंट व्हाट ही हैव टू पे मी आफ्टर 2 ईयर्स। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी कैलकुलेट अ सिंपल फॉर्मूला और सिंपल अमाउंट इन आवर चैप्टर। There is one more thing, the text formula. Actually this is not used by anyone, but how can we write a text formula? We see text formula,
Okay, how can we write a text formula? So as we all know, every formula start with equal to, then I'm giving the equal to, and then in double quotes, जो भी हम डबल कोट्स में लिखेंगे वो एक टेक्स्ट फॉर्मूला कहलाए. जैसे मैं मॉनिटर लिखा हूँ, मैंने लिखा मॉनिटर, ठीक है, डबल कोट्स बंद किया हूँ, इंटर दे रहे हैं, तो ये सिंपल मॉनिटर लिख देता है. यानी कि मेरा जब भी यहाँ जाऊँगा तो फॉर्मूला बॉक्स में मुझे वही दिखाई देगा, ठीक है, जो मैंने लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमको सिंपल वही दिखाई देगा. ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी जाता हूँ तो फॉर्मूला बॉक्स में हमको वो दिखाई देता है जो मैंने एज अ फॉर्मूला लिखा था, ठीक है. यहाँ पे भी जाता हूँ तो मुझे फॉर्मूला दिखता है, यहाँ पे भी जाता हूँ तो मुझे फॉर्मूला दिखता है, ठीक है. सो दिस इज द वे हाउ कैन वी कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स. ओके, चलिए हम लोग फिर से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे, आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग. नाउ वी मूव टू आवर चैप्टर. नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग. सो what is a cell referencing? Cell referencing means how a cell address behave in the formulas when it copy from one to another. एक्चुअली फ़र्क तब पड़ता है जब हम फॉर्मूला को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करते हैं, ठीक है. ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उस फॉर्मूला को क्या करना चाहते हैं, ठीक है. तो चलिए हम लोग एक बार इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं. ऐसे हम लोग को 3 टाइप ऑफ रेफरेंसिंग पढ़ना है. रिलेटेड सेल रेफरेंसिंग, ठीक है. फॉर एग्जांपल जो फॉर्मूला अभी हम लोग लिख रहे थे उस तरह का एक फॉर्मूला होगा. एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, ओके, व्हेन वी स्टार्ट विद $A $3, ठीक है. जैसे हम लोग अभी सेल एड्रेस कैसे लिख रहे थे, B2:C2 जैसे भी हम लोग लिख रहे थे, ठीक है. अभी हम लोग $A के साथ उसको ट्राई करेंगे. मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग, व्हेन हम लोग क्या करेंगे कि एक इस तरह का वैल्यू लेंगे और एक दूसरे तरह का, एक नॉर्मल तरह का, यानी कि एब्सोल्यूट को रिलेटिव के साथ मिक्स कर देंगे. एब्सोल्यूट में क्या होता है जब वो सेम चला जाता है, ठीक है, और रिलेटेड में क्या होता है. तो रिलेटेड में एक्चुअली होता क्या था कि जब हम एक सेल से दूसरे सेल में जाते थे तो वो अपने आप अपना नंबर चेंज कर लेता था. जैसे मैं B के बाद जैसे ही C में गया तो उसने C का C2 उसको कर दिया होगा, ठीक है. B से जैसे मैं C में गया वो ऑटोमेटिक चेंज कर देता है. लेकिन एब्सोल्यूट में क्या होता है कि वो उसी में सेम रह जाता है, सेल का एड्रेस चेंज नहीं होता. मिक्स्ड में एक में चेंज होगा और एक में चेंज नहीं होगा. तो चलिए फिर से चल के देखते हैं. तो यहाँ पर हम लोग रिलेटेड सेल रेफरेंस लिख रहे थे, ठीक है. देखिए B3:C3, ठीक है. चलिए यहाँ पर एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस को यूज़ करके देखते हैं क्या होता है. हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे. तो हम लोग फिर से फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ इक्वल टू. तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो है इसको हम लोग लेंगे, ठीक है. यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं, जैसे कि मुझे लिखना था B, तो मैं लिखता हूँ $B $2, ओके, मल्टीप्लाइड बाय $C $2, ठीक है. हमको रिजल्ट सेम मिला, ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि जब मैं इसको हटा देता हूँ पहले तो, ठीक है, यहाँ पे क्या होता था जब एक सेल आया, ठीक है, मैंने इसको नीचे की ओर खींचा तो देखिए सब में अलग अलग रिजल्ट आया है. लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों में सेम रिजल्ट है. मैं इसको पकड़ के नीचे जब खींचता हूँ तो मुझे सेम रिजल्ट नहीं मिलता. ये सारा में सेम रिजल्ट मिल जाएगा जो फर्स्ट वाले सेल में. ये सबको कॉपी कर लिया और यहाँ पर क्या था, यहाँ फॉर्मूला कॉपी हो रहा था और यहाँ पर क्या है, इसने वैल्यू को ही कॉपी किया है सर, ठीक है. सो दिस इज द वे हाउ कैन वी यूज द द रिलेटेड सेल रेफरेंस एंड द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. ओके, दिस इज द रिलेटेड सेल रेफरेंस एंड दिस इज द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. चलिए फिर से एक बार इसको करके देखते हैं. चलिए एक बार मिक्स्ड को यूज करके देखते हैं ना. मैं वापस ऊपर चला जाता हूँ. अब हम लोग क्या करेंगे, मैं इस वाले को चेंज कर देता हूँ. चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से आपके लिए. एज यू नो एवरी फॉर्मूला स्टार्ट विद इक्वल टू. देन दिस टाइम हम रेट सेम रखेंगे. मान लीजिए हमको मॉनिटर भी 15 बेचे थे, माउस भी 15 बेचे थे, प्रिंटर भी 15 बेचे थे, CPU भी 15 बेचे थे, कीबोर्ड भी 15 बेचे थे, ठीक है. तो अगर हमको ये सब कुछ पता है तो हम बार बार कॉपी क्यों करेंगे. इसके लिए हम लोग लिख देते हैं $B $2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय C2, ओके. यहाँ पर ये मिक्स वाला हमने लिया है, प्रेस कर रहे हैं इंटर, ठीक है.
ये तो सेम आया। चलिए नीचे देखते हैं क्या सेम आया है। अब देखिए इन सब के अमाउंट में चेंजेस हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यहाँ 16 था तो यहाँ 4 था आया था, लेकिन यहाँ 15 है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। देखिए यहाँ पे C3 हो चुका है, लेकिन मैं ऊपर जाता तो यहाँ C2 है, और ये $भी $2 ही है, चाहे मैं इसी में भी चला जाऊँ, $भी $2 ही है। यानी कि ये जो है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो रिलेटेड सेल रेफरेंस है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी यूज द सेल रेफरेंसेस, ओके। सो देयर इज वन मोर थिंग। अब हमने ये अमाउंट कैलकुलेट कर लिया था, द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। अब हमको मेरा एक और सीट है यहाँ पर, ठीक है। ये जो राजू है, जो मेरा सेलर था, जिससे मैंने अभी इतना सारा प्रोडक्ट बेचा है, ठीक है, और ये अमाउंट आया था, ठीक है, जो उनको पे करना है मेरे को, तो इन्होंने पहले भी हमसे सामान लिया है, ठीक है। 4 मई को लिया था, 4 जून को लिया था, ठीक है, और 7 मई यानी कि आज का डेट है। चलिए मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ आपको, ओके। इसको भी हटा देते, चलिए फिर से लिखते हैं। तो जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज द मंथ ऑफ, एंड देन गिव द डेट 6। चलिए, सो हाउ कैन वी राइट द डेट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि मैंने 6 लिखा और उसने उसको 6 मई कर दिया। चलिए आज का डेट भी लिख के देखते हैं। सो पहले हम लोग को मंथ देना है, देन आज का डेट देना है। आप देख सकते हैं इसने इसको चेंज करके आज का डेट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी आपको कंप्यूटर में डेट लिखना हो तो ध्यान देना है, पहले मंथ, फिर डे एंड देन ईयर। तो चलिए ये तो हमको पढ़ना नहीं था, हम लोग को पढ़ना है कि इस वैल्यू को हम यहाँ कैसे लाएंगे। हाउ कैन वी कॉपी दिस वैल्यू फ्रॉम देयर टू हियर, ठीक है। तो हमको पहले इसका एड्रेस याद रखना होगा। इसका एड्रेस है D7। चलिए D7 हमको एड्रेस उसका याद हो गया। आगे चलते हैं, कैसे होगा। तो इसके लिए भी एक सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल टू शीट 1, क्योंकि इसका नाम है शीट 1, देन SHEET शीट 1 दिया हमने। देन वी गिव अ सिंबल ऑफ नॉट इक्वल टू, इट्स नॉट इक्वल टू को मैंने सिंबल दे दिया। और जो भी सेल नेम था क्या था, D7, मैंने D7 लिखा है। नाउ यू सी द D7 वैल्यू इज कॉपीड हियर। आसानी से D7 का वैल्यू यहाँ पे आ गया। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी कॉपी द some values from one cell to the another sheet, one sheet to the another sheet. This is the way. So I hope you all understand. Thank you for watching this video.